सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम नाज़रीन। 14 अप्रैल 2025 को मुल्क गिर पैमाने पर मादरे वतन के बेहतरीन सपूत भारत रत्न और मेमारी दस्तूर हिंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम वलादत निहायत उल्फत और अकीदत के साथ मनाया गया। अंबेडकर जयंती के पूर्व मुसर्रत मौके पर शहर निशात कोलकाता में भी अंबेडकर जयंती निहायत मुसर्रत और शादमानी के साथ मुख्तलिफ सियासी समाजी मूल्य इदारों की जानिब से मनाई गई। इस मौके पर रियासती कांग्रेस, संविधान बचाओ समिति, अखिल भारतीय धोबी महासंघ, विश्व रजक महासंघ समेत कई सियासी व मिली तंजीमों की जानिब से बाबा साहब की याद में रैलियों का एहतमाम किया गया। कोलकाता के रेड रोड पर नस्ब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए, जहां बाबा साहब के मुजस्समे के कुर्ब जवार में कोलकाता, हावड़ा और कुर्ब जवार के इलाकों से उनके अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी तरह धर्मतल्ला के रानी रासमरी में भी संविधान बचाओ समिति की जानिब से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर समिति के ओहदेदारों ने बाबा साहब के मुजस्समे पर अकीदत के फूल चढ़ाए। पेश खिदमत इन तकरीबात की चंद झलकियाँ। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। গোপাল লাগড়া, মনেশ্বর টুডু, বেল সুজন ছেলে চলে যান, আপনাদেরই খাবার। আমাদের জোনাল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত বিশ্বাস আছে, তাকেও বলবো পুষ্পার্ঘ মাল্যার্পণ করার জন্য। বাবা সাহেবের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন সতীশ ভারতী। এখন মাল্যদান করবেন আমাদের জোনাল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত বিশ্বাস। আমাদের চন্দা হরি রয়েছে, কেন পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জানি না। আমাদের লিলুয়ার প্রেসিডেন্ট সরকারদা, আমাদের উত্তম মোল্লা জোনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট। নামাতে বলছি, বলে দিলাম তো অ্যানাউন্সমেন্ট। এই খাবারটা নামানোর জন্য লোকটা লাগবে, তো এখানে রাখুন, সামনে সামনে এখানে রাখুন। আমাদের দিলীপদার কিছু লোক এসছে পরে, তারা বোধ হয় টিফিন পায়নি, টিফিন কিন্তু আছে, টিফিনটা এখন লেগে দিতে পারেন। পরে बाबा का भक्त है ना, पार्टी थोड़ी चल रहा है। लाइए पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी की ओर से संविधान की रचना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सूरज बढ़िया से देखें। আমরা আজকে রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই দাবি রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমরা দাবি রাখছি গভর্নর, যিনি কনস্টিটিউশন এর হেড, এখানে সংবিধানের প্রধান এই রাজ্যের গভর্নর মহাশয়ের কাছে, আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি ক্লাস 5 থেকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়াতে হবে, যেখানে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির বিষয়গুলো যাতে পড়ানো হয়। 448টি অনুচ্ছেদ আর্টিকেলে এই সংবিধান 106 বার এটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। তো এবার আপনারা ভাবুন, এই যে সংবিধান, এই সংবিধান বাচ্চা ছেলেরা জানবে না কেন? তার কারণ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে তার নৈতিক দায়িত্ব কি, তার কর্তব্য কি এবং দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা কি, সেটা জানা প্রয়োজন। আর এইটা জানতে দিতে চাইছে না কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা তাই দাবি জানাচ্ছি এবং আমরা পার্লামেন্টের বিরোধী দলনেতা জননায়ক রাহুল গান্ধীর কাছে এই দাবিপত্র পাঠাচ্ছি। আমাদের কংগ্রেসের সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গেজি, তার কাছেও আমরা দাবিপত্র পাঠাচ্ছি। আমরা কেসি বেণুগোপালজির কাছে পাঠাচ্ছি এবং আমাদের রাজ্যের ইনচার্জ
গোলাম মোহাম্মদ মীর সাহেব তার কাছেও পাঠাচ্ছি। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত যারা একাডেমিশিয়ান আছে, সবার কাছে আমার আবেদন যে ভারতবর্ষের এই সংবিধান ক্লাস 5 থেকে আবশ্যিক সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো হোক। সবরমতীর তীর থেকে আমরা সবাই ছিলাম। রাহুল গান্ধী বলেছেন যার যার ভাষা, সেই ভাষা অনুযায়ী সংবিধান যাতে বাংলায় যারা পড়তে চান বাংলায় পড়বেন, হিন্দিতে যারা পড়তে চান উর্দুতে পড়তে চান, ইংরেজিতে পড়তে চান, ক্লাস 5 থেকে যাতে এই সংবিধান পড়ানো হয়। এই সংবিধানকে আজকে নষ্ট করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, খুব ভেবে দেখুন, এই সংবিধানের কারণে শত শত বছরের পুরনো আমাদের ধর্মীয় শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরআন, গীতা, গ্রন্থ সাহেব যত কিছু আছে সবকিছু প্রোটেক্টেড হচ্ছে এই গোটা বইটার দ্বারা। এবং শুধু তাই নয়, আমাদের ধর্মীয় যে প্রতিষ্ঠান, সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে রক্ষা পাচ্ছে এই সংবিধানের জন্য। এবং আজকে আমরা এখানে পায়রা উড়িয়ে, আমরা সাদা বেলুন উড়িয়ে আমরা এখানে শান্তির বার্তা দিই। रजक अखिल भारतीय धोबी महासंघ, मैं पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हूँ अपने समाज का। हम लोग प्रत्येक साल बाबा साहेब के जयंती में हम लोग अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तरफ से एक रैली का आयोजन करते हैं। और यहाँ पर रेड रोड में जो बाबा साहेब के हमारे जो स्टैचू बैठे हैं उनको हम लोग संबर्धना देने आते हैं। और हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो पिछड़े हुए हैं, जो बाबा साहेब ने जो संविधान बनाए हैं, हम लोग उस संविधान को लेकर जो जागरूक नहीं है उसे हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन अभी बस ये कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि कुछ राजनीतिक दल बाबा साहेब के संविधान को लेकर छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान जिन्होंने बनाए हैं पूरे भारतवर्ष के मनुष्यों के लिए, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने बराबर का दर्जा दिया है। उन्होंने कोई जाति या धर्म देखकर किसी को बांटा नहीं है। उन्होंने मानव का धर्म दिया है, मनुष्य को बराबर का दर्जा दिया है। लेकिन कुछ जाति को लेकर, बाबा साहेब को संविधान को लेकर, पॉलिटिकल को लेकर इशू करके बाबा साहेब का संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, शेष करना चाहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, मैं नाम धर के नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। अपनी जगह पर राजनीति करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को लेके कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप बाबा साहेब को संविधान को लेकर ना छेड़िए। अगर छेड़ते हैं, अगर हम लोग दलितों लोग, हमारे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के, हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष में जो हमारे संगठन है और भी SC ST के जो संगठन हैं, अगर हम लोग रास्ते पर आ गए तो आप लोग को भी रास्ता पर लाने के लिए मजबूर कर देंगे। मैं राम बच्चन, ऑल इंडिया SC कम्युनिटी का प्रेसिडेंट। मैं आज बहुत ही खुशी की बात है, बाबा साहब का जन्मदिन है और आज सारे दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, दुनिया में। और खुशी की बात यह है कि हमारे कौम के एक महापुरुष को आज सारी दुनिया याद करिए, इसके लिए हम लोग गर्व महसूस करते हैं। आज इसी गर्व के साथ एक और बात कहना जरूरी समझता हूँ मैं आजकल, कि गया में, बौद्ध गया में 1949 एक्ट को बातिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कानून के तहत बौद्ध गया में जो कब्जा गौतम बुद्ध मंदिर पे होने की कोशिश हो रही है, बुद्ध के मंदिर पे कोशिश हो रही है, जो ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। बिहार सरकार को चाहिए कि वो जो बौद्धों का मंदिर है उन्हें वापस करे और 1949 एक्ट को बातिल करे। इन्हीं सब बातों से और आज के दिन सब लोग, सारे देश के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग मिलकर बाबा साहब का खुशियाँ मनाएं, मिलजुल के रहें और एक होकर के इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। और मैं कोलकाता से, अलीपुर से आया हूँ और मेरा जो उद्देश्य था, बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती है आज, उस पर्पस से आया हूँ और बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में माला अर्पित किया मैंने और पुष्प विसर्जन किया मैंने। तो मैं अपने बहुजन समाज पार्टी से और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों से मैं और OBC वालों से बोलना चाहता हूँ
कि आज हम यहाँ पे आकर के जो देख रहे हैं, इतने जनसंख्या होते हुए पर भी इतने ना के बराबर आए हुए हैं। मुझे लगता है कि क्या चीज़ का डर है या फिर क्या चीज़ का शर्म है। अगर डर है और शर्म है तो मुझे लगता है कि जिस कास्ट में हम लोग जन्म लिए हैं उस कास्ट में तो मुझे लगता है कि डर पैदा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत है। और जितने सारे हम लोग का शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट में से एक ही महामानव थे जो हम लोग को डर को हमेशा के लिए मिटा दिया है। और हम लोग को क्या है ना कि डर नहीं होना चाहिए और सबको मिल करके बाहर निकलना चाहिए। मुकेश रजक, ABDM अखिल भारतीय धोबी महासंघ के मैं जो है सो कोषाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने मिलकर को जो है सो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का रैली निकाले हैं। इसमें उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर फिर बहुत सारे जिला से, जैसे कि टीटागढ़ हो गया, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, बेहला हो गया, पूरे पश्चिम बंगाल के ही जो है हम लोग के साथ समन्वय होकर के और हर साल जो है सो इसका हर्ष और उल्लास के साथ उनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें दिए हैं उन्हें जो है सो उनसे मुंह से भी बयान करना के बराबर नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बड़े कामयाबी के चीज़ हम लोगों को देके गए हैं। देश में जिस समय महिलाओं का जो है सो शिक्षा नहीं दिया जाता था, उन्होंने संविधान में शिक्षा को लेकर को आए हैं एवं समस्त जातियों के ही जो है सो उद्धार करने के लिए हम लोगों को ये सम्मान और जो है सो अधिकार दिए हैं। तो इन सब कारणों से, इनके खुशी से ही जो है सो हम लोगों ने उनके जन्म जयंती को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। साहब ने तो सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है सो बाबा साहब को छोटा दिखाने के लिए कभी उन्होंने दलित के नेता बताए हैं, जबकि वो सबके लिए हैं। क्योंकि ब्राह्मण के परिवार की भी लड़की जो है सो हमारे आज जो है सो पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर है, चाहे वो MP में हो, चाहे MLA बने हो, चाहे आज राष्ट्रपति बने, वो उनके ही देन है, जिसके कारण ही जो है सो इस ऊंचे पोस्ट पर। जी, मैं सूरज रजक, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय धोबी महासंघ पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी। आज 14 अप्रैल को हर साल की भांति हम लोग इस साल भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा का आयोजन हमारे कमेटी की ओर से किया गया है, जिसमें हमारे विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रांत से हमारे स्वजाति, रजक स्वजाति और दूसरे भी स्वजाति भाई हमारे जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी इस शोभा यात्रा को समापन के करीब में पहुंच गए हैं। बस बाबा स्टैचू के पास जाकर हम लोग माल्यार्पण करके इस शोभा यात्रा के समाप्त करेंगे।